Hello everyone and welcome back to my playlist of histology. हम histology पढ़ रहे हैं from the book Inder Singh and today we are going to start chapter number 9 which is lymphatics and lymphoid tissue. Now the lymphoid system includes lymphatic vessels, lymphoid tissue and also जो इन्होंने यहाँ नहीं लिखा एक्चुअली लिखना चाहिए था the lymph itself. जैसे blood vascular system होता है उसमें blood vessels होती हैं और there are some tissues which are associated with formation of blood such as bone marrow and then there is the circulating blood. बिल्कुल ऐसे ही lymphatics का सिलसिला है कि basically मैं अगर आपको एक generalized concept से ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँ so it is something like this कि suppose there is an artery and this artery then divides into a smaller branch called arteriole और इस arteriole से then we start getting a lot of capillaries और ये जो capillaries हैं इसके बाद यहाँ से connect होगा blood venules में और venules will ultimately drain into the vein. So that is the direction of flow of the blood through the tissues और यहाँ पे ये tissues के जो भी ये tissue है उस tissue के यहाँ पे cells होंगे. Okay, so from the artery to the arteriole to the capillary to the venule to the vein तो blood oxygenated इस तरह से tissues की तरफ आएगा और यहाँ से वापस चला जाएगा via the vein. Okay, now what happens कि ये जो capillaries हैं इन capillaries से ये काफ़ी सारा मटेरियल प्लाज्मा का लीक होता है टूवर्ड्स द टिश्यूज और ये जो चीज़ लीक हो रही है दैट इज बेसिकली हैज़ द सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स इन स्टफ सेम एज दैट ऑफ प्लाज्मा. अमाउंट थोड़ा कम होता है और कुछ ज़ाहिर प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशंस डिफरेंट होंगे बट दैट इज फिल्टर्ड एंड प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस हेयर. अब ये जो लिक्विड यहाँ टिश्यू स्पेस में जमा हो जाता है इस स्पेस में जमा होने वाले इस लिक्विड को नाम दिया जाता है lymph. So that is what is known as lymph. और इन टिश्यूज में से अलग से ब्लड वेसल्स की तरह कुछ वेसल्स इनिशिएट होती हैं विद द ब्लाइंड एंडिंग. इस तरह एक वेसल स्टार्ट हो जाएगी और ये जो वेसल है ये अल्टीमेटली ट्रेवल करेगी एक अपना इसका अलग पाथ होगा. दिस इज नॉट द वैस्कुलर सिस्टम. ये यहाँ से स्टार्ट हुई ये जो फ्लूइड निकला था जिसको हमने लिम्फ नाम दिया वो इसमें एंटर हो जाएगा और वो फ्लूइड इसमें ट्रेवल करता हुआ इट विल गो थ्रू इट्स ओन चैनल. अब जिस ट्यूब के अंदर ये एंटर हुआ है उसे हम कहते हैं लिम्फैटिक वेसल और इस लिम्फैटिक वेसल में जब ये पास ऑन होगा सो गैप्स के साथ साथ देयर विल बी लिम्फ नोड्स. फॉर एग्जांपल ये लिम्फ इसमें से गुजरेगा फिर वेसल मजीद आगे बढ़ेगी. देयर विल बी अदर लिम्फॉइड ऑर्गन्स सच एज स्प्लीन सच एज थाइमस. सो लिम्फॉइड ऑर्गन्स में से गुजरेगा. अल्टीमेटली ये जो लिम्फैटिक टिश्यू है वो इन पाइपलाइंस और इन ऑर्गन्स में से होता हुआ अल्टीमेटली किस में ड्रेन कर जाएगा इनटू द वेन. सो द lymph after passing through all the channel of the lymph node ultimately drain into the vein. और ये पूरा बेसिकली सिस्टम है जिसमें lymph एग्जिस्ट करता है, lymphatic vessels एग्जिस्ट करती हैं और lymphoid tissue एग्जिस्ट करता है. ओके, so the lymphoid system is composed of lymphatic vessel, is composed of lymphoid tissue and is composed of lymph. Okay, now lymphatic vessels, when circulating blood reaches the capillaries, part of its fluid content passes into the surrounding tissue as tissue fluid. Most of the fluid re-enters the capillaries at their venous end. Some of it is, however, returned to the circulation as a separate system of lymphatic vessel and this fluid is known as lymph. ये जो सारी मैंने डिस्कशन अभी यहाँ आपके साथ की है कि किस तरह से आर्टरी से ब्लड आएगा, आर्ट्रियोल कैपिलरी यहाँ से लिम्फ बनेगा और वो लिम्फ एंटर हो जाएगा इस लिम्फैटिक सिस्टम के अंदर. ओके, नाउ द स्मॉलेस्ट lymphatic vessels are lymphatic capillaries that join together to form the larger lymphatics. The larger lymphatic vessel in the body is the thoracic duct. This is the largest of the lymphatic vessels. It drains ultimately into the left subclavian vein at the junction with the internal jugular vein. So मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले आपको यहाँ बात बताई थी कि lymphatic system ultimately venous system में drain करता है. Okay, so it ultimately drains into the subclavian vein. इसी तरह right side पे भी है right lymphatic duct that also drains into the venous system. तो अभी लिम्फैटिक वेसल की मैं हिस्टोलॉजी भी आपको बताऊंगा कि लिम्फैटिक वेसल में क्या क्या चीज़ें होती हैं बट यहाँ पे एक जनरल इनिशियल इंट्रोडक्टरी पैरा है ये कि द लिम्फैटिक वेसल्स इनिशिएट विद इन द टिश्यूज, इट कैरी ऑन द लिम्फ एंड देन दे अल्टीमेटली ड्रेन इनटू द वेनस सिस्टम. Okay, now lymphoid tissue are usually divided into two broad categories. One is known as diffuse lymphoid tissue and the other is known as dense lymphoid tissue. अब जो diffuse lymphoid tissue है, as the name indicates, the diffuse lymphoid tissue consists of diffusely arranged lymphocytes and plasma cells in the mucosa of large intestine
ट्रैकिया, ब्रोंकस एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। सो ये वो प्लेसेस हैं जहां पर लिम्फॉइड सेल्स मौजूद होते हैं डिफ्यूजली एंड दे आर प्रेजेंट थ्रू द म्यूकोजा ऑफ ऑल दीज सेल्स। ओके, सो दीज आर ऑल कॉल्ड डिफ्यूजली अरेंज्ड लिम्फॉइड टिश्यू। अनदर कैटेगरी ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू इज कॉल्ड द डेंस लिम्फॉइड टिश्यू। अब जो डेंस लिम्फॉइड टिश्यू है उसकी डेफिनेशन जो उसका नाम है उसी में वर्ड आ रहा है डेंस। इट कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीगेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, यानी अगर ये म्यूकोजा है और इस म्यूकोजा में जगह जगह डिफ्यूजली अरेंज लिम्फोसाइट्स हैं, सो दिस इज नोन एज डिफ्यूज लिम्फॉइड टिश्यू। लेकिन अगर कहीं एक ये ट्यूब है, से फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन की ट्यूब है और इसमें देयर इज एग्रीगेट ऑफ लिम्फोसाइट्स, तो ये जो एग्रीगेट बन रहे हैं दीज आर नोन एज डेंस लिम्फॉइड टिश्यू। सो दे आर एग्रीगेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ nodules. These nodules are found either as discrete encapsulated organs or in close association to the lining epithelium of the gut. The dense lymphoid tissue can therefore be further subdivided into discrete lymphoid organs. These include thymus and lymph node and spleen and tonsil. अब आप इन जो भी नाम मैंने अभी आपके सामने लिए, थाइमस, लिम्फ नोड, स्प्लीन, आप एक एक का स्ट्रक्चर को उठा के देखेंगे। सो इट्स अ डेफिनेटिव स्ट्रक्चर। लिम्फ नोड जो है इट इज प्रेजेंट ऑन द वे ऑफ द लिम्फैटिक वेसल। ये एक लिम्फैटिक वेसल है, ये एक लिम्फैटिक वेसल है, बीच में यहाँ पे लिम्फ नोड मौजूद होगा। सो और इस लिम्फ नोड में बहुत सारे लिम्फोसाइट्स अरेंज्ड होंगे। अभी हम लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सो इट्स अ डिस्क्रीट मास और एग्रीगेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। इट्स अ डेंस लिम्फॉइड टिश्यू। ओके, और डेंस लिम्फॉइड टिश्यू में भी इट्स द डिस्क्रीट वैरायटी, यानी एक ही जगह पर इनकैप्सुलेटेड एक कैप्सूल है। ऐसे ही स्प्लीन पे एक कैप्सूल होता है, टॉन्सिल्स कैप्सूल के साथ इनकैप्सुलेटेड होते हैं, थाइमस के अराउंड कैप्सूल होता है। सो अगर बाकायदा एक कैप्सूल मौजूद है, डिस्क्रीटली मास ऑफ लिम्फोसाइट मौजूद है, दैट इज व्हाट वी कॉल द डिस्क्रीट सिस्टम। जबकि जो म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू है, व्हाट हैपेंस एंड दिस इज एब्रिविएटेड एज MALT. A small number of lymphocytes may be present almost anywhere in the body, but significant aggregations are seen in relation to the mucosa of the respiratory, alimentary, yani GI tract, urogenital tracts, and these aggregations of lymphoid cells is known as MALT. Mucosa-associated lymphoid tissue in the respiratory system is well known, and it is also termed as the bronchial-associated lymphoid tissue because it is present in the bronchi. And mucosa-associated lymphoid tissue जो gut में होता है, this is known as GALT, gut associated lymphoid tissue. Okay, and they include Peyer's patches of small intestine, adenoids which are present at the roof of the pharynx and lingual tonsils. So ये वो तमाम different classification systems हैं जो आपको lymphoid tissue के हवाले से याद रखना है। पहला, it can be diffuse lymphoid tissue, it can be dense lymphoid tissue. फिर जो dense lymphoid tissue है, it can be of the discrete nature, यानी बड़े बड़े organs की तरह हैं और encapsulated हैं, और mucosa के साथ जो associated हैं वो कहलाते हैं MALT। और MALT अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है तो दिस इज नोन एज ब्रोंकियल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, और अगर वो गट के साथ एसोसिएटेड है तो दिस इज नोन एज गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ठीक है, तो लिम्फैटिक वेसल की थोड़ी सी बात हो गई, लिम्फॉइड टिश्यू की हल्की फुल्की सी बात हुई है। अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मैं आपको आगे लिम्फ नोड की हिस्टोलॉजी पढ़ाऊंगा, थाइमस की हिस्टोलॉजी पढ़ाऊंगा, और स्प्लीन की एक्चुअली मैं हिस्टोलॉजी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो उस वीडियो की तरफ रेफर कर दूंगा। ठीक है, तो हम अलग अलग एक एक ऑर्गन की, एक एक लिम्फॉइड टिश्यू की हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे। नाउ द थर्ड कंपोनेंट, तो क्या तीन कंपोनेंट्स होते हैं लिम्फैटिक सिस्टम के? पहला लिम्फैटिक वेसल्स जिसमें लिम्फ गुजरेगा, दूसरा लिम्फैटिक टिश्यू जैसे कि लिम्फ नोड, स्प्लीन, और तीसरा लिम्फ यानी कि जो लिक्विड इन सिस्टम में पूरा सर्कुलेट करेगा। द लिम्फ इज अ ट्रांसुडेट फ्रॉम द ब्लड and it contains the same proteins as in plasma. Transudate का मतलब होता है जो यहाँ कैपिलरीज से निकल के बाहर आया है, so this is the transudate. यहाँ lymph बनता है and it has the same protein concentration as the plasma but in smaller amounts and in somewhat different proportions. Suspended in lymph there are cells that are chiefly lymphocytes. Most of these lymphocytes are added to the lymph as it passes through the lymph node, but some are derived from the tissues drained by the nodes. Basically बात ये हो रही है कि जैसे blood circulatory system में जो cells हैं वो क्या क्या हैं, वो हैं red blood cell, वो हैं WBCs, platelets हैं, ऐसे lymph में ज़्यादातर जो cells circulate कर रहे हैं वो क्या हैं? These cells are basically lymphocytes. तो आपके lymphatic system में कौन से cells travel कर रहे हैं? Lymphocytes by and large. Okay.
अच्छा जी, large molecules of fat that are absorbed from the intestine enter the lymph vessels. After a fatty meal, fat globules may be so numerous that the lymph becomes actually milky because of the fat droplets, and this is known as chyle. Lymph coming from the intestine is known as chyle, particularly after a heavy fatty meal. Under these conditions, the lymph vessels can be seen easily as they pass through the mesentery. बात यहाँ पर ये हो रही है कि देखें आपका स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, फैटी मील आपने ली है, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो मील का डाइजेस्टेड प्रोडक्ट एब्जॉर्ब होगा, तो फैट ग्लोब्यूल्स होंगे, यहाँ से लिम्फेटिक वेसल्स निकलेंगी इन फैट ग्लोब्यूल्स को लेकर, सो दे अपीयर मिल्की वाइट एंड देयरफॉर दे आर नोन एज काइले. सो लिम्फ from the intestine which contains huge quantities of fat globules is known as chyle. Okay. Now, lymphocytes की थोड़ी सी बात करेंगे, उससे पहले ये बहरहाल ये अभी डिस्कशन में आएगा जब हम बात करेंगे थाइमस की और बोन मैरो की. lymphocytes क्या हैं? They are a specialized population of cells and this cell population comprise most of the lymph and lymphatic tissues. The cell population of a lymph node is made up by and large overwhelmingly by the lymphocyte. यानी जो lymphoid tissue हैं जिसमें बहुत सारे lymphoid tissue है ना, lymph node is a lymphoid tissue, तो इसके अंदर बहुत सारे lymphocytes होंगे, इसमें बहुत सारे लिम्फोसाइट्स होंगे, टॉन्सिल्स में बहुत सारे लिम्फोसाइट्स होंगे, गट में होंगे क्योंकि गट में गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू है, थाइमस में लिम्फोसाइट्स होंगे. सो ऑल द लिम्फॉइड टिश्यू कंटेन्स लिम्फोसाइट्स. जैसे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं एरिथ्रोसाइट्स, बिल्कुल ऐसे ही लिम्फॉइड टिश्यू में लिम्फोसाइट्स हैं. अब इन एम्ब्रियो द लिम्फोसाइट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द mesenchymal cells present in the wall of the yolk sac and in the liver and spleen. These stem cells later migrate to the bone marrow. Lymphocytes formed from these stem cells enter the blood. Depending on their subsequent behavior, they are classified into two major types, which are known as T lymphocytes, and the other category is known as B lymphocytes. अब होता ये है कि bone marrow में, suppose this is the long bone, और इस long bone के bone marrow में erythropoietic precursors जो हैं वो lymphocyte lineage के cells बनाते हैं. So we ultimately get some cells which go to thymus for their training, और thymus में जो cells जाते हैं और train होकर वापस circulation में निकलते हैं, these are called T cells. ठीक है, T lymphocytes. और वो सेल्स जो थाइमस में नहीं जाते बल्कि डायरेक्टली मैच्योर होकर सर्कुलेशन में आ जाते हैं, these are called B cells, B lymphocytes. बेसिकली B lymphocytes यहाँ फिट हो रहा है बोन मैरो के साथ, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब होता है बर्सा ऑफ फेब्राइसिस. बर्ड्स में एक्चुअली क्लोइकल एक आउटपॉक्सिंग होती है जिसको बर्सा ऑफ फेब्राइसिस कहते हैं. उस बर्सा के लिए ये वर्ड B है, वहाँ उनके टी सेल्स डेवलप होते हैं, तो यहाँ इम्यूनिटी डेवलप होती है. तो ह्यूमंस में भी इसी तरह का पैटर्न है, इन सेल्स को नाम दिया जाता है B lymphocytes. अब जो T lymphocytes हैं, इस डायग्राम पे अब ये कहानी थोड़ी सी नजर आ रही है, उसको देख लेते हैं कि व्हाट डज दिस डायग्राम टेल अस. सो दिस इज द बोन मैरो. बोन मैरो से सेल्स निकले और पहले कहाँ गए? थाइमस में. थाइमस में उनके लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कि व्हाट हैपेंस इन थाइमस इज द ट्रेनिंग ऑफ लिम्फोसाइट. अब ट्रेनिंग का मतलब भाई क्या है? मैंने फिजियोलॉजी की वीडियोस में ये बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है. बेसिकली ये होता है कि ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं इनको इस तरह ट्रेन किया जाता है कि ये बॉडी के जो सेल्फ एंटीजेंस हैं या जो सेल्फ प्रोटीन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके अगेंस्ट रिएक्ट न करें. तो टी सेल्स को बाकायदा बताया जाता है, ये एक टी सेल है, टी लिम्फोसाइट, उसको दिखाते हैं कि भाई देखो ये प्रोटीन ए है, ये बॉडी की प्रोटीन है, ये प्रोटीन बी है, ये बॉडी की प्रोटीन है, ये प्रोटीन सी है, ये बॉडी की प्रोटीन है. तुम इनको पहचान रहे हो? अगर पहचान रहे हो तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे. अगर कोई टी लिम्फोसाइट कहता है नहीं जी मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है, मैं इनको नहीं पहचानता, इसको सर्कुलेशन में निकाल दिया जाता है, क्योंकि अब ये सर्कुलेशन में जाके इन बॉडी की प्रोटीन्स को डैमेज नहीं करेगा. बेसिकली आप सेल्फ प्रोटीन्स या सेल्फ एंटीजेंस के अगेंस्ट रिएक्शन को रोकते हैं. ऐसे तमाम टी सेल जिनमें ये पोटेंशियल होता है कि वो बॉडी की प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है, और ऐसे तमाम टी सेल्स जिनमें ये पोटेंशियल नहीं होता उन्हें सर्कुलेशन में रिलीज कर दिया जाता है. तो ट्रेनिंग के बाद थाइमस से ये लिम्फोसाइट्स निकल आते हैं सर्कुलेशन में, एंड दे कैन गो टू एनी लिम्फॉइड टिश्यू सच एज द गट, टॉन्सिल, स्प्लीन, लिम्फ. सो बोन मैरो में ये सेल्स बने, टी सेल्स गए थाइमस में ट्रेनिंग के लिए और फिर सर्कुलेशन में आ गए. सो ये स्टोरी है टी लिम्फोसाइट्स की. फिर एक और कैटेगरी है विच इज द बी लिम्फोसाइट. इसमें बोन मैरो से सेल्स निकले मैच्योर होके और थाइमस में नहीं गए और डायरेक्टली सर्कुलेशन में घूम रहे हैं. गट में भी जा सकते हैं, टॉन्सिल में भी, तमाम लिम्फॉइड टिश्यू में जाएंगे, टिश्यूज में जाएंगे. दीज आर बी लिम्फोसाइट्स. ओके, अब ये सारी स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई भी है. टी स्टैंड्स फॉर थाइमस, दे आर प्रोसेस इन द थाइमस. और जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, दैट बी कम्स फ्रॉम बर्सा ऑफ फेब्राइसिस which is a diverticulum of cloaca in the birds. वहाँ से ये नाम निकला है. अब
you know, immunologically these cells, ये जो दो cells हैं T cells और B cells, ये बिल्कुल different हैं एक दूसरे से. The T cells are designed to produce chemicals which are known as cytokines. So जो T cells हैं they produce some chemicals which are known as cytokines, and the B cells are designed to produce एंटीबॉडीज. तो हमारी बॉडी में जितनी भी एंटीबॉडीज बनती हैं, द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इज टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन ऑब्वियसली, और ये एंटीबॉडीज बनती हैं बाय द बी सेल, और टी सेल क्या बनाते हैं? साइटोकाइन. तो ये बेसिक डिफरेंस है कि लिम्फोसाइट्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम इन कॉन्ट्रास्ट टू द ग्रेन्युलोसाइट एंड मोनोसाइट दैट डायरेक्टली अटैक द इन्वेरिंग ऑर्गेनिज्म. जैसे न्यूट्रोफिल की बात हो रही है, न्यूट्रोफिल डायरेक्ट फैगोसाइटोसिस करता है. ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, पर्टिकुलरली द बी लिम्फोसाइट, दे मेक एंटीबॉडीज, और ये एंटीजन को रिकग्नाइज करके एंटीबॉडीज बनाते हैं ताकि एंटीजन को न्यूट्रलाइज किया जा सके. एवरी एंटीजन कैन बी न्यूट्रलाइज ओनली बाय अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी. It follows that lymphocytes must be capable of producing a very wide range of antibodies. ये हमने फिजियोलॉजी में तमाम चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हुई हैं. Now the function of antibody production is done by B lymphocytes. When stimulated by the presence of an antigen, these cells enlarge and get converted into plasma cell, and the plasma cells actually produce antibody. The plasma cells produce antibodies. Okay? या यूं कह लो कि B cell की activated form है plasma cell, और plasma cell से क्या बनता है? Antibody. Right? Antibodies are also known as immunoglobulin. इसकी 5 टाइप्स होती हैं, ये G, M, A and E. फिजियोलॉजी में ये पढ़ा हुआ है बहुत डिटेल में. ओके, नाउ टी लिम्फोसाइट्स जो हैं, जो डेवलप होते हैं इन द थाइमस, और थाइमस की हिस्टोलॉजी भी इस चैप्टर में आगे चल के हम पढ़ेंगे. दे बेसिकली प्रोड्यूस साइटोकाइंस, या इसका दूसरा नाम है लिम्फोकाइंस. अब ये जो साइटोकाइंस और लिम्फोकाइंस हैं, दे एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस. फॉर एग्जांपल, दे हेल्प बी लिम्फोसाइट्स. दे आर इन्वॉल्व्ड इन सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्सेज. फॉर एग्जांपल, जो टी सेल्स हैं ये दो तरह के होते हैं. एक को हम नाम देते हैं हेल्पर टी सेल, और हेल्पर टी सेल जो हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन ऐसी होती है कि उन पर, उन टी सेल्स के सरफेस पर ये मार्कर होता है CD4, इसीलिए इन्हें कहते हैं CD4 पॉजिटिव टी सेल्स. और एक कैटेगरी होती है जिसको नाम देते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स. ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है, इनके सरफेस पर CD8 मार्कर होता है, इसीलिए इसको कहते हैं CD8 पॉजिटिव टी सेल. अब ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, दे डिस्ट्रॉय द वायरल सेल्स फॉर एग्जांपल, दे डिस्ट्रॉय द ट्यूमर सेल्स फॉर एग्जांपल. और ये जो CD4 पॉजिटिव सेल्स हैं, ये एक्चुअली, इनका नाम हेल्पर है ना, दे हेल्प द बी सेल टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज. ओके, सो टी lymphocytes are very very important. Like B lymphocytes, T lymphocytes also retain a memory of antigen encountered by them, and they can respond more strongly when same antigen encounters the body again. Memory का फिनोमिना है. अगेन रेफर टू माई फिजियोलॉजी प्लेलिस्ट ऑफ हेमाटोलॉजी मॉड्यूल, उसमें आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे से समझ में आएंगे. इस वक्त बॉटम लाइन पॉइंट ये है, हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो लिम्फैटिक सिस्टम है उसमें क्या क्या है. उसमें लिम्फैटिक वेसल्स हैं, उसमें लिम्फॉइड टिश्यू है, और उसमें लिम्फ है. इन तीनों चीज़ों की हमने कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है. अब बात को आगे बढ़ाते हैं. दिस इज दी एडेड इन्फॉर्मेशन. साइटोटॉक्सिक टी सेल में आपको बता चुका हूँ, हेल्पर टी सेल में आपको बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट. इससे ज़्यादा ये जो MHC क्लास रिप्रेजेंटेशन है, प्लीज़ रेफर टू माई फिजियोलॉजी लेक्चर्स ऑन immunity. Okay, now markers of cells of immune system, many proteins that are specific to cells of the immune system are now recognized. These may be cytosolic or submembrane proteins. Using antibodies specific to these proteins, it is possible to identify a particular type of cell, and these are called cluster designation molecules, CD molecules. So for example, ये एक सेल है lymphocyte, इसके सरफेस पर ही एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसको नाम देते हैं CD मॉलिक्यूल. ये जो CD मॉलिक्यूल है, अगर ये CD4 है तो हमें पता है कि ये हेल्पर टी सेल है. अगर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल CD8 है तो हमें पता है कि ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है. सो दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हेल्प अस आइडेंटिफाई कि कौन सा इम्यून सेल है. अब ये जो आइडेंटिफिकेशन है इस प्रोटीन मॉलिक्यूल की, इट कैन बी डन बाय इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, इट कैन बी डन बाय फ्लो डिफरेंट टेक्निक से हम पता लगा सकते हैं कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है क्या. ओके, नाउ viruses such as HIV that causes disease called AIDS attaches itself to protein CD4 which is present on helper T lymphocytes. Okay, और helper T lymphocyte का नंबर कम हो जाता है, इसीलिए infections ज़्यादा होते हैं because a particular type of T cell in the body is depleted because of HIV infection. Okay, now cytokines क्या हैं? They are released from T lymphocytes. So we have seen that T lymphocytes produce cytokines that affect other cells. The main function of these cytokines is to stimulate
production of blood cells and their precursors. Apart from T cells, cytokines are also produced by monocytes, macrophages. So many cells produce cytokines. यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, this is a very good table, और इसमें यहाँ different cells के नाम दिए हुए हैं, T lymphocyte, monocytes, endothelium, fibroblast, और यहाँ cytokines के नाम दिए हुए हैं. तो देखें T lymphocyte IL-2 भी बनाता है, IL-3 भी बनाता है, IL-5, 6 और बाकी ILs नहीं बनाता, बट granulocyte, monocyte, colony stimulating factor. So monocytes में से क्या निकलता है? IL-1. So कौन सा सेल कौन सा साइटोकाइन प्रोड्यूस करता है, उसके लिए ये टेबल इज इंपॉर्टेंट. और फिर ये जो साइटोकाइंस हैं, यहाँ पे अपर पैनल जो है दिस इज अबाउट द साइटोकाइन, और लेफ्ट साइड पे है टाइप ऑफ सेल. तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि जो इंटरल्यूकिन 2 है इट अफेक्ट मोनोसाइट एक्टिवेशन बट इट डज नॉट अफेक्ट ग्रेन्युलोसाइट प्रिकर्सर फॉर्मेशन. इस तरह. ओके, सो इंटरल्यूकिन 3 फॉर एग्जांपल जो है इट हेल्प्स मेगा कैरियोसाइट प्रिकर्सर, प्लेटलेट बनाने में हेल्प करेगा. इंटरल्यूकिन 6 ऑल्सो हेल्प इन मेगा कैरियोसाइट प्रिकर्सर. इंटरल्यूकिन 9 हेल्प्स इन एरिथ्रोसाइट प्रिकर्सर फॉर्मेशन एज वेल एज मेका. सो दिस टेबल टेल्स यू कि कौन से साइटोकाइन का सेल टाइप पर क्या अफेक्ट होता है. ओके, राइट. ओके, ये सारी बातें इस टेबल में कवर हो गई हैं. सो दैट्स ऑल डन एंड सॉर्टेड. नाउ वी हैव टू डिस्कस कि जी व्हाट इज मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सिस्टम. द मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सिस्टम जो है दैट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स सच एज, अभी हम उनके बारे में जिक्र करेंगे डिपेंडिंग अपॉन किस टिश्यू की हम बात कर रहे हैं. डिफरेंट तरह के मोनोसाइट्स हैं, बट द वर्ड मोनोन्यूक्लियर मीन्स कि ये एक बड़ा सा सेल है और इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस है. तो मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक बिकॉज इसमें फैगोसाइटोसिस की कैपेसिटी है. इट कैन इनगल्फ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स. ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली थ्रू आउट द बॉडी देयर आर अ सीरीज ऑफ सेल्स दैट शेयर द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एबल टू फैगोसाइटोज unwanted matter including bacteria and dead cells. These cells also play an important role in defense mechanism and carrying out this function they act in close collaboration with lymphocytes. So these are the cell types, mononuclear cells, which perform their function in close coordination with the lymphocytes. In past, some of the cell of this system have been also given a name called reticuloendothelial system, but now the mononuclear phagocytic system is more routinely used terminology. Okay, the term macrophage system has also been used for these cells, but again this is the most commonly used terminology nowadays. और ये जो monocyte macrophage system है इसमें different constituents हैं, different तरह के cells हैं. और वो cells कौन कौन से हैं? एक तो वो cells हैं जो monocytes blood में circulate कर रहे होते हैं, they are simply known as monocytes. लेकिन एक दफ़ा जब blood से ये monocytes tissues में enter हो जाते हैं then they are called macrophages. अब ये जो macrophages हैं या histiocytes they reside in the connective tissue, or monocytes are converted into macrophages when the monocytes enter into the tissue spaces. यानी जब तक ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है मोनोसाइट कहलाएगा, जब टिश्यूज में आ जाएगा तो मैक्रोफेज कहलाएगा. ओके, देन देयर इज वन कुपर सेल या लिटोरल सेल्स इंटरस्पेट्स अमंग द सेल लाइनिंग ऑफ द साइनसॉइड्स ऑफ द लिवर. लिवर में इन्हीं मैक्रोफेजेस को क्या नाम दिया जाता है? कुपर सेल्स. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्हीं मैक्रोफेजेस को क्या नाम दिया जाता है? माइक्रोग्लायल सेल्स. और मैक्रोफेजेस इन प्लूरा, पेरिटोनियम, alveoli of the lungs, they are also important and they are also cells of the mononuclear phagocytic system. These cells are also present in the synovial fluids. They are also present in the dermis, epidermis, skin में, and there they are known as dendritic cells which are important to present antigen. ये सारा concept हमने physiology में discuss किया हुआ है कि what is antigen presenting cell. Okay, so बेसिकली अब तक जो हम बात कर रहे हैं वो सारी ये है कि जो मोनोसाइट फैगोसाइटिक सिस्टम है इनमें जो सेल्स होंगे दे विल बी मोनोन्यूक्लियर एंड दे विल हैव द कैपेसिटी ऑफ फैगोसाइटोसिस. अगर ये स्किन में हैं तो दे आर कॉल्ड डेंड्राइटिक सेल्स. अगर ये सीएनएस में हैं तो दे आर कॉल्ड माइक्रोग्लाया. अगर ये लिवर में हैं तो दे आर कॉल्ड कुपर सेल्स. अलग अलग नाम हैं बट ऑल ऑफ देम हैव द कैपेसिटी ऑफ फैगोसाइटोसिस. ओके, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऑल द सेल्स ऑफ द मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम have some features in common. They are large cells, 15 से 25 micron. It's a big cell. The nucleus is euchromatic and large nucleus. Granular and agranular endoplasmic reticulum. Golgi complexes, mitochondria are also present because they are active cells. The cells have irregular surfaces that bear filopodia because they can move and capture the bacterium. तो इनमें movement होनी है इसलिए इनमें pseudopodia बनता है, इसीलिए इनमें ये protein microvilli type structures मौजूद हैं. Okay? Now macrophages often
often form aggregations. In relation to the peritoneum and pleura, such aggregations are seen as milky spots. यानी बहुत सारे macrophages आपस में मिलके एक aggregate बनाते हैं. When they come in contact with large particles, macrophages may fuse to form giant cells. यानी एक कोई foreign particle आया, asbestos particle है lungs में, तो एक foreign particle से deal करने वाला macrophage, दूसरा macrophage, तीसरा, ये सारे macrophages मिल जाते हैं और इस पूरे structure को अब क्या नाम देते हैं हम? This is known as a giant cell. So they sometimes unite with each other and make a giant cell. In the presence of organisms like tubercle bacilli, the cells may transform into another character which is called epithelioid cell. These are involved in T cell mediated immune responses. So giant cell बनता है और इसमें T cells को invite किया जाता है. They also release cytokines, and then the whole complex is known as the epithelioid cell. Monocytes can be classified into various types dependent on the markers present in them. Marker का मतलब ये है कि इनकी surface पर प्रोटीन कौन सी मौजूद है, उसकी बेस पर इनको different types में divide किया जाता है. Okay? Origin of cell. All the cells of this system, the monocyte phagocytic system, are arising from the stem cells in the bone marrow. Okay, they are arising from the bone marrow and they are released into the blood, and from the blood they pass into the tissues. Functionally, how they are classified? From a functional point of view, mononuclear phagocytic cells are divided into two main categories. The first one is, with the exception of dendritic cells, all the cell types are classified as highly phagocytic, and when we say highly phagocytic, it basically means that they have very huge potential of phagocytosis. And the dendritic mononuclear phagocytes, this is the other group, now also known as the dendritic antigen presenting cells, are capable of phagocytosis, but their main role is to initiate the immune system because they are antigen presenting cells. In the simplest form of explanation, I can tell you कि suppose this is the antigen presenting cell, इसका काम ये है कि बैक्टीरियम को अंदर लिया, उसको चॉप ऑफ किया और बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स को यहाँ बाहर डिस्प्ले पे लगा दिया. अब जब ये डिस्प्ले पे लगा दिया तो बराबर से गुजरता हुआ अगर कोई टी लिम्फोसाइट है तो वो इनको आइडेंटिफाई करेगा और साइटोकाइंस रिलीज करेगा. तो ये वाला सेल क्या कर रहा है? ये वाला सेल बैक्टीरिया को इंगल्फ करके बैक्टीरिया के एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है, बैक्टीरिया के एंटीजन को थाल में प्रेजेंट कर रहा है अपनी सरफेस पर. Therefore it is called antigen presenting cell because it is presenting the antigens of the foreign body to the T lymphocytes. Okay, that's why they are called. So दो तरह के monocytes हैं, एक जो purely phagocytosis करते हैं और दूसरे जिनका basically काम है APCs. इनकी example है dendritic cells. Okay. Now, function of mononuclear phagocyte system, participation in defense mechanism. As already stated, the cells have the ability to phagocytose particulate matter, dead cells and organisms. So macrophages can do this. In the lungs, alveolar macrophages engulf inhaled particles and these are seen as dust cells. तो अब ये जो macrophages हैं जिनमें foreign particles जमा हो गए हैं, they are now known as the dust cells. In the spleen and liver, macrophages destroy the aged and damaged red blood cell. So macrophages का काम ये तोड़ फोड़ करो, phagocytosis करो, चीज को खा जाओ. Okay, role in the immune system, obviously they are very important because they are phagocytosing stuff. All mononuclear phagocytes bear antigen on their surface, the class 2 MHC antigen. Antigen phagocytosed by macrophages are partially digested by lysosomes and basically they are phagocytosing, they are engulfing, they are eating the microorganism. Okay, certain T lymphocytes produce macrophage activating factor including interleukin 2 that influence the activity of macrophages. Macrophages, when thus stimulated, synthesize and secrete cytokines. Basically यहाँ पे बता रहे हैं कि T lymphocytes work in close conjunction with macrophages, एक दूसरे की stimulation करवाते हैं. Okay, एक्चुअली ये वाला जो टेबल था, इस टेबल को अगर आप देखें तो यहाँ पे इंटरल्यूकिन 2 जो है वो मोनोसाइट की एक्टिवेशन करवा रहा है. सो इंटरल्यूकिन 2 निकलता कहाँ से? टी सेल से निकलता है. सो टी सेल से निकलने वाला इंटरल्यूकिन 2 मोनोसाइट्स की एक्टिवेशन करवाता है. सो दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन. When foreign substances enter the body, antibodies are produced against them. These antibodies adhere to the organism. Macrophages bear receptors for these attached antibodies, and then this phagocytose them and release lysosomal enzyme. Also nothing new for you. From the above, it will be seen that lymphocytes and macrophages constitute an integrated immune system. When suitably stimulated, mononuclear phagocytes secrete tumor necrosis factor, which is able to kill neoplastic cells as well. So अब तक जो हम बात कर रहे थे वो ये थी कि जो macrophages हैं
या जो मोनोसाइट्स हैं, दे आर लार्जली परफॉर्मिंग देयर फंक्शन अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन अब हमने बात की कि दे कैन ऑल्सो किल नियोप्लास्टिक सेल बाय सिक्रीशन ऑफ अ साइटोकाइन which is known as tumor necrosis factor, TNF. Okay, macrophages influence the growth and differentiation of tissues by producing several growth factors and differentiation factors. ठीक है भाई। अब देखो, जब 2-4 पेज पढ़ लिया करो ना किसी भी किताब के, तो ये देखा जरूर करो कि अब तक मैंने किया क्या है। सिर्फ पढ़े जा रहा हूँ, या जो ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग है वो अपनी जगह फिक्स कर रही है आप सबके ब्रेन में। ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग ये है कि वी आर डिस्कसिंग द लिम्फेटिक टिश्यू, और लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है लिम्फेटिक वेसल, दूसरा कंपोनेंट है लिम्फॉइड टिश्यू, और तीसरा कंपोनेंट है लिम्फ। तो हमने लिम्फेटिक वेसल्स की भी थोड़ी सी बात की है अभी, लिम्फ की थोड़ी सी बात की है, और लिम्फॉइड जो टिश्यू है दिस इज मेड अप ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो हमने लिम्फोसाइट की बात की कि टी लिम्फोसाइट्स क्या हैं, बी लिम्फोसाइट्स क्या हैं, मोनोसाइट मैक्रोफेजेस जो लिम्फोसाइट के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, उनकी डिटेल्स हमने डिस्कस की। हमने थोड़ी सी ये बात की कि जो लिम्फॉइड टिश्यू है वो किस तरह अरेंज होता है, वो स्प्लीन की फॉर्म में है, वो थाइमस की फॉर्म में है, वो लिम्फ नोड की फॉर्म में है। अब हम ये जो स्ट्रक्चर्स हमने थोड़े थोड़े से टच किए थे, इनको ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे। तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं ये तीनों चीज़ें मतलब लिम्फेटिक वेसल्स, और नंबर 2 पे लिम्फॉइड टिश्यू, और नंबर 3 पे लिम्फ, ये जो तीनों चीज़ें हमने ऊपर भी डिस्कस की थी जनरली सुपरफिशियली, उनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिटेल डिस्कशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं दे आर आइदर ऑफ स्मॉल कैलिबर विच आर कॉल्ड द लिम्फ कैपिलरीज, या फिर लार्ज कैलिबर की वेसल्स होती हैं विच आर कॉल्ड ऑब्वियसली द लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स। जो कैपिलरीज हैं they begin blindly in the tissues where they form a network. The structure of lymph capillaries is basically similar to that of the blood capillary, but difference ये होता है कि the lymphatic capillaries are adapted for much more permeability, क्योंकि इनका पर्पस यही है कि बड़े molecules जो हैं वो absorb हो सकें into the lymphatic capillary. The basal lamina is either absent or poorly developed, and this is what contributes to the increased permeability of the lymphatic capillaries. Pericytes or connective tissue are not present around the capillary. Again, this is another factor which contribute to the increased permeability. तो अगर आपसे कोई ये सवाल करता है कि लिम्फेटिक कैपिलरीज की परमिएबिलिटी जो ब्लड वेसल्स की कैपिलरीज होती हैं उनसे ज़्यादा क्यों होती है, तो एटलीस्ट 2 रीजंस तो आपको स्ट्रेट अवे नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 कि बेसल लैमिना इज पुअरली डेवलप्ड इन लिम्फेटिक कैपिलरीज, एंड नंबर 2 द पेरिसाइट्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज आर एब्सेंट। तो ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, इफ़ वी गो बैक टू द वेरी स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, टिश्यू में दे आर स्टार्टेड ब्लाइंडली, सो दीज आर द कैपिलरीज एंड मैनी मोर कैपिलरीज ज्वाइन एंड फॉर्म द लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स. Okay, so they initially are started blindly in the tissue. As compared to the blood capillaries, much larger molecules can pass through these lymph capillaries, and that is the basic purpose, because colloidal molecule हैं, fat droplets हैं, particulate matter such as bacteria है, that has to be transported from the tissue away from the tissue somewhere into the lymphatic system, into the lymph nodes, and then ultimately into the venous system. तो ये सारा मॉलिक्यूल एक्चुअली टिश्यू से हटाना है, इसके लिए ये पूरा लिम्फेटिक कैपिलरी का नेटवर्क सेट होता है. अब ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी. देयर आर सम एक्सेप्शंस सच एज दे आर एब्सेंट इन avascular tissues including the cornea and the nails and the hair. ये वो जगहें हैं जहां पर lymphatic capillaries नहीं है obviously. In the splenic pulp and in the bone marrow. Wow, these are the 2 examples जो मुझे बहुत कम स्टूडेंट्स बताते हैं. It has been held that lymphatics are not present in nervous tissue, but we know that some vessels are present. So nervous system is not a clear cut area जहां पे हम कह सकें कि lymphatic capillaries बिल्कुल नहीं होती. It has been shown कि some lymphatics are there, but these areas are known not to have any lymphatic capillaries. Okay, अब जो larger lymphatic vessels हैं वो they are much more like veins. यानी अगर आप इनका सेक्शन देखें, so there is a thin tunica intima, there is a tunica media, and then there is a tunica adventitia, and here is the lumen. फर्क ये है कि इस lumen में blood नहीं, बल्कि इस lumen में क्या गुजर रहा होगा, lymph गुजर रहा होगा. Okay, the structure of the thoracic duct, which is a large not blood vessel, capillary, not capillary, large lymphatic vessel. Okay, so thoracic duct is a large lymphatic vessel, and it is similar to that of a vein.
इसका स्ट्रक्चर में ट्यूनिका इंटिमा है, ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया है. ओके, द मीडिया एंड ऑल्सो द एडवेंटिशिया कंटेन सम स्मूथ मसल्स, जैसे कि वेन्स में भी होता है. इन मोस्ट वेसल्स द स्मूथ मसल इज अरेंज्ड सर्कुलरली, बट इन थोरैसिक डक्ट इट मे प्रीडोमिनेंटली बी लॉन्गिट्यूडनल. इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है. न्यूमरस वेल्व्स सिमिलर टू दोज ऑफ वेन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द लार्ज लिम्फैटिक्स. तो जो लिम्फ कैपिलरीज और लार्जर लिम्फैटिक्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स हमने देख लिए किस तरह के हैं, और अगर इनकी इन्फ्लेमेशन हो तो दैट इज कॉल्ड lymphangitis. Acute या chronic lymphangitis can be because of different organisms, such as acute is common because of beta hemolytic streptococci staph, and chronic is common because of chronic infections such as syphilis, actinomyces, tuberculosis. तो ये सारे मसले मसाइल थे lymph vessels के. Lymphedema is swelling of soft tissues due to localized increase in the quantity of lymph. It may be primary और सेकेंडरी. सेकेंडरी का मतलब है किसी वजह से लिम्फैटिक्स ब्लॉक हो गई है. सेकेंडरी लिम्फेडिमा इज मोर कॉमन एंड मे बी सीन ड्यू टू लिम्फैटिक इन्वेजन सच एज बाय द malignant tumors, post irradiation, fibrosis, parasite infection such as elephantiasis. Obstructive lymphedema occur only when the obstruction is widespread. The affected area consists of dilated lymphatics distal to the obstruction. Rupture of dilated large lymphatic may result in escape of milky chyle into the peritoneum, chyloperitoneum. थॉरेक्स में है तो काइलोथॉरेक्स, पेरिकार्डियल कैविटी में है तो पेरिकार्डियम का काइलोपेरिकार्डियम, एंड अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में है तो काइल्यूरिया. ये जो सारी बात है वो समझना जरूरी है. मैं आपको समझाता हूं कि देखें ये सेल्स हैं और यहाँ से पूरा ये आर्टरी आ रही है एंड दिस इज द आर्टरियोल और ये कैपिलरी नेटवर्क है, एंड देन हियर वी हैव द वेनियोल एंड द वेन. सो ये पूरा नॉर्मल वैस्कुलर सिस्टम है और ये टिश्यू में यहाँ पर देयर इज लिम्फ. यहाँ से ब्लाइंड सिस्टम स्टार्ट हुआ कैपिलरीज का, लिम्फैटिक वेसल्स का, जो इस लिम्फ को लेके जाएगा लिम्फ नोड और फिर दूसरे लिम्फैटिक टिश्यूज. अब अगर किसी वजह से सपोज यहाँ पे जो सेल्स हैं, हम ब्रेस्ट टिश्यू की बात कर रहे हैं, और इन ब्रेस्ट टिश्यू में कैंसर हो गया और ये कैंसर की वजह से ये लिम्फैटिक्स ब्लॉक हो गई. अब जब ये लिम्फैटिक्स ब्लॉक हो जाएंगी तो ये जो लिम्फ है ये लिम्फ वेसल में ट्रेवल करेगा नहीं, करेगा ना. तो ये लिम्फ यहाँ पे जमा रहेगा तो ये जो टिश्यू है ये स्वेल करेगा. इसको हम नाम देते हैं लिम्फ एडीमा. तो यहाँ तो मैंने कैंसर की एग्जांपल दी है जिसकी वजह से लिम्फैटिक्स ब्लॉक हो रही है. इट कैन बी ब्लॉक बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, इट कैन बी बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स. ओके, बट व्हेनेवर देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लिम्फैटिक्स देयर विल बी लिम्फ एडीमा. एंड देन द अदर थिंग इज अगर रप्चर ऑफ द लिम्फैटिक वेसल होगा तो पेरिटोनियम में भी लिम्फ फैल सकता है, थॉरेक्स में फैल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन रप्चर कहाँ हुआ है. सो उस लिम्फ फैलने के लिए हम कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, सच एज अगर पेरिटोनियम में लिम्फ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है दैट इज कॉल्ड काइलो पेरिटोनियम, थॉरेक्स में काइलो थॉरेक्स, पेरिकार्डियम में काइलो पेरिकार्डियम, थिंग्स लाइक दैट. ओके, इजी स्टफ, तो इतना मुश्किल नहीं है ये. अब so we talked about how do the lymphatic vessels look like. So lymphatic vessels is done. Now we want to discuss कि lymph nodes क्या होते हैं और lymph nodes कैसे दिखते हैं, इनकी हिस्टोलॉजी क्या है. ओके, अब एक एक करके जरा lymphoid tissues डिस्कस करते हैं ना. lymph node की बात करते हैं, फिर spleen की बात करेंगे, फिर thymus की बात करेंगे. So let's talk about lymph nodes. lymph nodes का सबसे पहले जो आपको conceptual understanding होनी चाहिए वो ये है कि lymph nodes are present on the way of lymphatic vessels. यानी एक lymphatic vessel ट्रैवल कर रही है यूं, तो उसके बीच में यहाँ पे ऐसे lymph node आएगा और फिर lymphatic vessel कंटिन्यू करेगी, फिर lymph node आएगा, फिर lymphatic vessel कंटिन्यू करेगी. सो जो lymph node है it is basically a check point for the flowing lymph. जो lymph गुजर रहा है वो इस check point पर check होता है, क्योंकि ये जो lymph node है ना इसमें क्या भरे हुए हैं, lymph node में बहुत सारे lymphocytes भरे हुए हैं, और ये जो lymphocyte हैं वो इस बहते हुए lymph को चेक कर रहे हैं कि कहीं इसमें कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, इसमें कोई डेड पार्टिकल्स तो नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिनको इंगल्फ करना है, जिनको फैगोसाइटोस करना है, उसको क्लीन करना है. तो ये क्लीनिंग फिल्टर्स हैं जो पूरे लिम्फैटिक सिस्टम के अंदर जगह जगह पर बहुत सारे मौजूद हैं. ठीक है, सो स्कैटर्ड अलोंग द कोर्स ऑफ लिम्फैटिक वेसल्स there are numerous small masses of lymphoid tissue known as the lymph nodes.
as a rule, the lymph from any part of the body passes through one or more lymph nodes before entering into the bloodstream. तो ये जो चेक पॉइंट है इनसे गुजरना जरूरी है, ठीक है। अल्टीमेटली हमको पता है ये सारा lymph कहाँ चला जाएगा, वेनस सिस्टम के अंदर चला जाएगा, लेकिन इस फिल्ट्रेशन के बाद। सो ये जो lymph nodes हैं, these are the filtration units. These are filtration units. Okay. Now, lymph nodes act as filters for what? For removing bacteria, other particulate matter from the lymph. Lymphocytes are added to the lymph in these nodes. So these nodes contain a lot of lymphocytes. Each group of lymph node has a specific area of drainage. Each lymph node consists of connective tissue, framework, numerous lymphocytes, and an intrinsic network of connective tissue. The entire node is bean-shaped, kidney की तरह ऐसा छोटा सा bean-shaped. The concavity is known as the hilum, जैसे kidney में होता है, and then the structure is divided into outer cortex and inner medulla. So when you do a section through the lymph node, it is seen that the node has an outer zone which is composed of densely packed lymphocytes, and this outer zone is called cortex, and the inner zone is known as medulla. तो अगर हम diagram देखें, this is a cartoon diagram, so lymph node का section लिया हुआ है, so ये जो outer part होगा that will be the cortex और inner part होगा medulla. अगर हम real histological picture देखें, so this is a section and then staining, तो आप देख रहे हैं कि this outermost will obviously be the capsule. So this is the capsule of the lymph node, और इस capsule से अंदर यूं ट्रेबेक्युला जाते हैं, partitions from the capsule. Outer area में you see these are all the lymphocytes, और ये जो lymphocytes हैं they are present in the form of nodules. ये जो पूरा nodule है इसको कहते हैं lymphatic nodule. It is made up of lymphocytes, और इसमें ये जो सारे lymphocytes हैं ये इस तरह arrange होते हैं कि nodule के corner पर ज़्यादा lymphocytes हैं और center में कम है. तो जो center है उसे कहा जाता है germinal center. So it stains less and the outer area stains more, and the outer area is therefore known as the zone of dense lymphocytes. Okay. तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द जोन ऑफ डेंस लिम्फोसाइट. इट इज द आउटर एरिया ऑफ द नोड्यूल. द सेंट्रल एरिया इज लेस स्टेन्ड एंड लेस lymphocytes, and this is known as the germinal center, and there is, and all these nodules are present. This area is the cortex. ये सब cortex में है. बीच में ये जो एरिया है, this is the medulla. ओके, सो मेडुला अलग है, कॉर्टेक्स आउटर एरिया है. तो ज्यादातर लिम्फोसाइट्स कहाँ होते हैं? कॉर्टेक्स में. सो कॉर्टेक्स इज वेयर देयर आर so many rounded nodules which are called the lymphoid nodules. Each nodule has a paler staining center which is called the germinal center, and it is surrounded by zone of densely packed lymphocytes. ये सारी बात हमने इस डायग्राम पे डिस्कस कर ली है. One more time, this is a section through the lymph node. ये कैप्सूल है. This is the lymphatic nodule. इसके पेरिफेरी पे आप देख रहे हो कि डार्क नजर आ रहा है. This is the area of dense area of lymphocyte aggregation, और सेंटर में it is light pale stained, so this is called germinal center. Okay, all right. मेडुला क्या है जनाब? मेडुला में जो अरेंजमेंट ऑफ लिम्फोसाइट्स हैं, मेडुला में भी लिम्फोसाइट्स, लेकिन जो मेडुला की लिम्फोसाइट्स हैं दे आर नॉट अरेंज इन द फॉर्म ऑफ नॉड्यूल. ऐसे नॉड्यूल नहीं बनाते, रादर दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ शीट्स एंड कॉर्ड्स. सो दे आर प्रेजेंट in the form of cords, not rounded nodular. Okay. Now connective tissue, lymph node में क्या क्या connective tissue है जनाब? There is obviously a very strong capsule, और जो capsule के बिल्कुल नीचे there is a space which is known as this gap. This is known as subcapsular sinus, and you see from the capsule there are trabeculae moving into the substance of the lymph node, and it divides the lymph node into different kind of compartments and septa. So a number of septa extend into the lymph node from the capsule. ठीक हो गई बात. तो ये इसका कनेक्टिव टिश्यू है कि देयर इज अ कैप्सूल, देयर इज सब कैप्सुलर साइनस, एंड देयर आर सेप्टा. नाउ सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ, ये बड़ी आसान है, ये जो सारियां लिखी हुई है पढ़वा भी देता हूं, लेकिन इट्स इजी. देखो, लिम्फ नोड की कहानी ये है कि जो लिम्फ नोड का कैप्सूल है उसमें ऊपर से इस तरह वेसल्स हैं, और इन वेसल्स को नाम देते हैं आफ्रेंट लिम्फ वेसल्स. ये लिम्फ लेकर आएंगी लिम्फ नोड की तरफ, और वो लिम्फ इस सब कैप्सुलर साइनस में आएगा, यहां से ड्रेन करेगा, ड्रेन करके हाइलम से इस ट्यूब के जरिए बाहर निकल जाएगा, विच इज कॉल्ड इफरेंट लिम्फ वेसल. सो यूं है डायरेक्शन ऑफ लिम्फैटिक फ्लो. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लिम्फैटिक फ्लो. लिम्फ यूं आ रहा है और यूं जा रहा है.
यूं आ रहा है और यूं बाहर जा रहा है, अफरेंट वेसल से आ रहा है और इफरेंट वेसल से जा रहा है. सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन द लिम्फैटिक नोड्यूल, जो लिम्फ नोड है. तो लिम्फ नोड अगेन डोंट फॉरगेट द मेजर कॉन्टेक्स्ट कि दिस इज द लिम्फ नोड और ये मौजूद है लिम्फ वेसल्स के बीच में, लाइक दिस. सो यहां से अगर लिम्फ नोड ट्रैवल कर रहा है तो यहां वो फिल्टर होगा और यहां से निकल जाएगा. तो जब लिम्फ नोड में से लिम्फ गुजरता है तो फिल्ट्रेशन कहाँ होती है भाई? फिल्ट्रेशन ऐसे होती है कि यहाँ पे ये गोल 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 सारी क्या चीजें हैं? लिम्फोसाइट. तो जब यहाँ से लिम्फ गुजरेगा तो लिम्फोसाइट चेक करेंगे, इसमें कोई बैक्टीरिया है तो खा जाओ, इसमें कोई ऐसी चीज है जिसको एब्जॉर्ब करना है, इंगल्फ करना है, फैगोसाइटोस करना है. तो इस गुजारने का पर्पस ये है कि जो सारा लिम्फ है उस लिम्फ को एक्सपोज कर दिया जाए किन चीजों के साथ? लिम्फोसाइट्स के साथ, ताकि लिम्फोसाइट इस लिम्फ को चेक कर लें और फिल्टर कर लें. आती है बात समझ में? तो ये है सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ नोड. द एंटायर लिम्फ नोड इज pervaded by a network of reticular fibers. Most of the spaces of this network are packed with lymphocytes. तो lymph node में क्या भरा हुआ है? Lymphocytes. At some spaces gaps हैं जिसमें से lymph गुजरता है, such as the subcapsular sinus, और subcapsular sinus से निकलता हुआ afferent से आएगा और efferent से it leaves the lymph node. Simple. Lymph passing through the system of sinuses comes into intimate contact with macrophages present in the node. So in the lymph node there are lymphocytes as well as macrophages. Bacteria and other particulate matter that are removed from the lymph by these cells, lymphocyte freely enter or leave the lymph node through these channels. यही जो vessels हैं, lymphocyte भी, ये देखो यहाँ पे जितने भी लिम्फोसाइट्स हैं वो आएंगे कहाँ से? ब्लड से आएंगे ना. तो वो ब्लड से इन्हीं अफरेंट वेसल्स के जरिए आते हैं और ऐसे लिम्फैटिक नोड्यूल में आके सेटल हो जाते हैं. ओके, नाउ ब्लड सप्लाई ऑफ द लिम्फ नोड. Arteries enter the lymph node at the region of the hilum. They pass through the medulla to reach the cortex, where they end in arterioles and capillaries. These arterioles and capillaries are arranged in loops and drain into the venules. So basically किसी भी और ऑर्गन की तरह का सिस्टम है कि आर्टरीज हैं वो ब्लड लेके आएंगी, वेन्स ब्लड को वापस लेके जाएगी और ये सारा सिस्टम एंट्री और एग्जिट ऑफ आर्टरीज हो रहा होगा एट द पॉइंट ऑफ हाइलम, जैसे किडनी में होता है, बिल्कुल ऐसे ही लिम्फ नोड में है. तो ये सेटअप डिफरेंट नहीं है फ्रॉम दी किडनी. ओके, एक यहाँ पे मुझे चीज डिस्कस करनी है कि जो पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स हैं लिम्फ नोड की, दे आर हाई एंडोथेलियल वेन्यूल, जिसका मतलब ये दे कंटेन क्यूबाइडल एपिथेलियम. इस क्यूबाइडल एपिथेलियम की वजह से होता ये कि इफ दिस इज द फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल वॉल, सो दे हैव क्यूबाइडल एपिथेलियम, द चांसेस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ lymphocytes with a lot of other structures is actually increased. This high endothelium readily allows the passage of lymphocytes between the bloodstream and the surrounding tissue. So ये एक important point है कि flattened squamous epithelium के बजाय यहाँ पर जो blood vessels हैं उनमें there are cuboidal epithelium, particularly in the post capillary venules में. Okay, all right. Now these endothelial cells bear receptors that are recognized by the circulating lymphocytes. Contact with these receptors facilitate the passage of lymphocyte through the vessel wall. इजी बात है. देखो लिम्फ नोड में से जो वेसल गुजर रही है उसमें से जो ब्लड गुजर रहा है उसका बेसिक पर्पस ये है कि लिम्फोसाइट के साथ इंटरेक्शन करने की कैपेसिटी हो, क्योंकि लिम्फ नोड में सारे भरे हुए क्या हैं? लिम्फोसाइट्स. इसीलिए जो यहाँ ब्लड वेसल है उसके सेल्स में स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं टू आइडेंटिफाई द लिम्फोसाइट्स. कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें समझना. हमारी बॉडी का डिजाइनिंग इस तरह से है कि जिस ऑर्गन का जो काम है वहाँ पर अरेंजमेंट उसी हिसाब किताब से की जाती है. Okay, now the functions of lymph node. Lymph nodes are sent. अभी तक क्या समझ में आया? What do you think is the function of lymph node? Lymph node में ये सारे nodules हैं जिसमें इतने भरे हुए lymphocytes हैं, इसमें से जो सारा lymph गुजर रहा है वो क्या होगा? वो filter होगा. So lymph node का काम basically filtration है. Lymph nodes are the centers of lymphocyte production. Both B lymphocyte and T lymphocytes are produced. Basically यहाँ पे multiplication होती है of the pre-existing lymphocyte. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे hematopoiesis के जरिए लिम्फ नोड में लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं, बल्कि पॉइंट ये है कि जो टी लिम्फोसाइट ऑलरेडी मौजूद हैं, जो बी लिम्फोसाइट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, वो मल्टीप्लाई होते हैं और वो मल्टीप्लाई होकर अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं. नाउ बैक्टीरिया एंड अदर पार्टिकुलेट मैटर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द लिम्फ थ्रू फैगोसाइटोसिस. वाओ, ये तो हमने कई दफा बात पढ़ ली कि लिम्फोसाइट फैगोसाइटोसिस करते हैं, लिम्फ नोड्स में लिम्फ को क्लियर करते हैं. और लिम्फ नोड में जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो एंटीजन को आइडेंटिफाई करके एंटीबॉडी बनाएंगे,
तो भाई बेसिकली बात यह है कि जो लिम्फ नोड्स हैं वो आपकी बॉडी के चेक पॉइंट्स हैं, और इन चेक पॉइंट्स का काम है आपकी बॉडी से इन्फेक्शन को, किसी भी और पर्टिकुलेट मैटर को, किसी भी और डेंजरस सेल को रिमूव कर दे. दैट इज वाई lymph nodes are very important. Inflammation of lymph node is known as lymphadenitis, and they are also very important because they are involved in carcinoma. अब ये सुनो भाई कहानी. सपोज से फॉर एग्जांपल दिस इज द ब्रेस्ट टिश्यू, और इस ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर यहाँ पे ये ब्रेस्ट सेल्स है जिनमें कैंसर हो गया. अब यहाँ से जो लिम्फेटिक निकलेगी, ये पहला लिम्फ नोड आया तो कैंसर सेल ट्रेवल करके यहाँ सेटल हो सकते हैं. फिर ये लिम्फेटिक है, दूसरा लिम्फ नोड आया, ये कैंसर सेल यहाँ सेटल कर सकते हैं. फिर एक्जिला में चली जाएगी लिम्फेटिक्स, यहाँ एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड आएगा. तो कैंसर सेल लिम्फ में एंटर हुआ, एक लिम्फ नोड, दूसरा लिम्फ नोड, तीसरा लिम्फ नोड सेटल होता जा रहा है. सो इसको हम नाम देते हैं lymphatic spread of cancer cells. So this is what is known as lymphatic spread of cancer. So lymph node involve होते चले जाएंगे. इसीलिए जब मेस्टेक्टमी करते हैं तो ये चेक किया जाता है कि नेबरिंग जो लिम्फ नोड्स हैं वो अगर इन्वॉल्व हैं तो इन लिम्फ नोड्स को भी रिमूव कर लिया जाए, क्योंकि इसके अंदर रेजिडुअल ट्यूमर सेल्स हैं, इसके अंदर कैंसर सेल्स सेटल हो चुके हैं. तो पता चला आपने ब्रेस्ट कैंसर तो निकाल दिया लेकिन लिम्फ नोड छोड़ दिया. अब लिम्फ नोड में ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर था, ये कैंसर सेल मजीद स्प्रेड करेगा बॉडी में. सो लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन कैंसर डिजीज मेटास्टेसिस. ओके, अच्छा जी, अब बात करते हैं. तो लिम्फ नोड की हमने बात कर ली, अगले लिम्फॉइड टिश्यू की बात करते हैं. दिस इज स्प्लीन. एक्चुअली इसकी बात नहीं करते, उसका रीजन ये है क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी हाफ एन आवर की तकरीबन 29 मिनट्स की मेरी वीडियो है, सेम मैंने बुक रीड की हुई है टू एक्सप्लेन स्प्लीन. असल में हुआ ये था कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम आ रहा था, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर आप इस चैप्टर को पूरे को अभी छोड़ दें लेकिन स्प्लीन पे हमें वीडियो बना के दे दें ताकि हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर दें. थैंक गॉड उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी कर दिया. तो मैंने स्प्लीन की वीडियो अलग से बना रखी है, मैं लिंक यहाँ पे दे देता हूँ, इस लिंक को फॉलो करें. तो ये स्प्लीन का पूरा टॉपिक ये सारा जो है ना, ये मैंने कवर किया हुआ है उस 29 मिनट्स की वीडियो में. ये सब पढ़ा हुआ है, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, ये सब पढ़ाया हुआ है, ये सब पढ़ाया हुआ है, यहाँ तक सारा पढ़ा दिया है. सो स्प्लीन पे जो वीडियो मौजूद है, डू वॉच माई वीडियो, मैं लिंक दे देता हूँ. ओके, अब बात शुरू करते हैं अगले लिम्फॉइड ऑर्गन की या लिम्फॉइड टिश्यू की, जिसका नाम है thymus. The thymus is an organ that is a hazy entity for most of the students. ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप अपने मेडिकल प्रैक्टिस में ना फॉर आई थिंक आप में से बहुत से स्टूडेंट्स थाइमस ना कभी पैल्पेट करेंगे, ना कभी अगर आप लोग कैडेवर्स की डायसेक्शन करते हैं तो थाइमस देखेंगे, बिकॉज थाइमस एक एज के बाद इन्वॉल्यूट कर जाता है, रिग्रेस कर जाता है, सो एट्रोफी कर जाता है ओल्ड पीपल में. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है. ऑलमोस्ट जितने भी आपकी बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं बोन मैरो में, दे एंटर इनटू द थाइमस फॉर देयर ट्रेनिंग. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिम्फॉइड ऑर्गन. At birth, the thymus weighs about 10 to 15 grams and the weight increases to about 30 to 40 grams around puberty. Or subsequently, the organ is replaced by the fat. However, the thymus is believed to produce T lymphocyte throughout the life. अब इसमें ये produce तो नहीं करता T lymphocytes को, but it trains the T lymphocyte. That's a better word कि thymus का काम है the training of T lymphocytes. Production of T lymphocyte basically होती है in the bone marrow. Bone marrow में बनते हैं T lymphocytes, thymus में आते हैं और यहाँ ट्रेन. और ट्रेनिंग मैंने आपको बता दी क्या ट्रेनिंग होती है कि जो सेल्फ प्रोटीन्स हैं उनको जो टी सेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन टी सेल को खत्म कर दिया जाता है ताकि ये जब सर्कुलेशन में जाएं तो अपनी ही बॉडी के प्रोटीन्स के अगेंस्ट काम ना कर रहे हो. ठीक है. थाइमस कंसिस्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट लोब्स दैट आर जॉइंड टुगेदर बाय अ फाइब्रस टिश्यू. ये हमने एनाटॉमी पढ़ रखी है बीडी चौरासिया से, तो आपको पता है, मेरी एनाटॉमी की प्लेलिस्ट देख लो यार. ईच लोब हैज अ कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल. द कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा पासिंग इनवर्ड फ्रॉम द कैप्सूल इनकम्प्लीटली divide the lobe into large number of lobules. It's same like the lymph node. जैसे lymph node था, lymph node का बाहर कैप्सूल था, अंदर सेप्टा आ रहे थे, ऐसे ही तकरीबन थाइमस में है. Each lobule is about 2 millimeter in diameter. It has an outer cortex and inner medulla. Both cortex and medulla contain cells of two distinct lineages as described below. The medulla of the adjoining lobule is continuous. The thymus is a rich blood supply. It does not receive any lymph vessel but gives off efferent vessel. Now ये सारी बातें बहुत ज़्यादा हो गई.
इनको थोड़ा सा डायसेक्ट आउट करते हैं। एक तो ये कि थाइमस में देयर इज अ फाइब्रस कैप्सूल, उस कैप्सूल से अंदर सेप्टा आते हैं और उस सेप्टा की वजह से द थाइमस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लॉब्यूल्स। सो दैट्स अ लॉब्यूल फॉर एग्जांपल, दैट्स अ लॉब्यूल फॉर एग्जांपल, दैट्स अ लॉब्यूल फॉर एग्जांपल। और हर लॉब्यूल का आउटर कॉर्टेक्स अलग है और इनर मेडुला अलग है। तो फॉर एग्जांपल ये मल्टीपल लॉब्यूल्स हैं जिनके मेडुला आपस में जुड़े हुए हैं और ये सब कॉर्टेक्स है। ये एक लॉब्यूल है जिसका ये सारा कॉर्टेक्स है और ये सेंटर में मेडुला है, ये कॉर्टेक्स है और ये मेडुला है, ये कॉर्टेक्स है और ये मेडुला है। ओके, एंड ये एक लॉब्यूल जिसका कॉर्टेक्स और मेडुला यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, समटाइम्स दे मेक ग्रुप्स। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसमें बताया था आपको, यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये एक लॉब्यूल है, ये एक लॉब्यूल है, ये एक लॉब्यूल है, ये एक लॉब्यूल है, इन सब के मेडुला आपस में मिल रहे हैं। ओके, सो द मेडुला आर कंबाइनिंग फॉर डिफरेंट लॉब्यूल्स। और एक्चुअली ये बड़ी आसानी से यू कैन आइडेंटिफाई थाइमस ऑन हिस्टोपैथोलॉजी। अगर आपके सामने ये स्लाइड आती है, इट्स अ डिस्टिंक्टिव पैटर्न, ऐसा किसी और लिम्फॉइड टिश्यू में है नहीं। स्प्लीन की ये पिक्चर नहीं होती, लिम्फ नोड की ये पिक्चर नहीं होती, लिम्फ नोड इज अ बीन शेप स्ट्रक्चर, इट्स ओनली द थाइमस विच इज लाइक दिस, जिसमें डिफरेंट लॉब्यूल्स हैं और हर लॉब्यूल का अपना कॉर्टेक्स और मेडुला है। ठीक है, अब जो ये लॉब्यूल्स हैं इनमें दो तरह के सेल्स हैं, दो डिफरेंट लीनिएजेस के सेल्स हैं। एक सेल टाइप कहलाती है एपिथेलियल सेल, या they are also known as epitheliocytes. Embryologically, these cells are derived from endoderm lining the third pharyngeal pouch. The cells lose all contact with pharyngeal wall. Later, they become flattened and may branch. This is too much detail. याद ना भी रहे तो इतनी कोई मसले वाली बात नहीं है, but ये पता होना चाहिए कि embryologically all the epithelial cells are derived from the endoderm lining the third. That's important. Okay. Now the cells join to form sheets that cover the internal surface of the capsule, the surface and the septa and the surfaces of the blood vessel. The epithelial cells lying deeper in the lobule develop processes that join similar processes from other cells to make the reticulum. It may be noted that the reticulum is cellular. Most of the tissue में जब हम reticular की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि we are talking about connective tissue and we are talking about protein fibers but not cells. लेकिन यहाँ पे cells के processes से reticulum और connective tissue structure develop हो रहा है. Okay? These epithelial cells of thymus are non-phagocytic. They do not perform any phagocytosis. It has been suggested that the sheets of epithelial cells present deep to the capsule, around the septa and around the blood vessel actually form an effective blood-thymus barrier. तो ये जो पहली सेल टाइप है जो थाइमस में होती है, इनका नाम है एपिथेलियल सेल्स। इसके बारे में अभी तक आपको क्या पता लगा? इसके बारे में आपने ये समझा कि दीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म व्हिच इज लाइनिंग द थर्ड फेरेंजियल पाउच, दे डू नॉट परफॉर्म फैगोसाइटोसिस, दे हैव लॉन्ग प्रोसेसेस एंड मेक द रेटिकुलम अपीयरेंस ऑफ द थाइमस एंड दे मेक द ब्लड थाइमस बैरियर। यानी जो ब्लड यहाँ पे आएगा, ये जो लंबे लंबे से फाइबर्स और सेप्टा और रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये ब्लड और थाइमस के दरमियान एक बैरियर की तरह है ताकि चीजें इधर उधर ना जा सकें। ओके, नाउ एपिथेलियोसाइट्स आल्सो promote T cell differentiation and एक और function epitheliocytes का. On the basis of structural differences, several types of epitheliocytes are recognized. Type 1 epitheliocytes line the inner aspects of the capsule, the septa and the blood vessel. These are the cells forming the partial hemothymic barrier, यानी blood thymus barrier. Type 2 and type 3 cells भी होते हैं, which are present in the outer and the inner parts of the cortex, respectively. Type 4 cells lie in the deepest part of the cortex and also in the medulla. They form a network containing spaces that are occupied by lymphocyte. तो ये basically यहाँ पे पूरा meshwork provide करते हैं. ये सारे meshwork इस तरह से provide करते हैं जिनके ऊपर lymphocytes होते हैं और वो lymphocytes पर अपना काम करेंगे जैसे phagocytosis है. Type 5 epitheliocytes are also present and they are present around the corpuscles of Hessel. अभी बताता हूँ ये क्या होता है corpuscle of Hessel. Cortical epitheliocytes are also described as thymic nurse cells because they are important to destroy the lymphocytes which react against the self antigen. ऐसे तमाम T lymphocyte जो अपनी ही बॉडी की सेल्फ एंटीजेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्हें तबाह कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, एंड दैट इज ऑल्सो द जॉब ऑफ एपिथेलियोसाइट्स. सो एपिथेलियोसाइट्स के काफी सारे काम हैं.
Epitheliocytes are important to make the blood-thymus barrier. Epitheliocytes are important for T-cell differentiation and proliferation. Epitheliocytes are also important because they provide platform जिस पर lymphocytes stable होते हैं, and they are also important to maintain those lymphocytes only, T lymphocytes, जो अपने self antigens को identify नहीं करते, जो करते हैं उनको ही destroy कर देता है. ठीक है, अगली बात करते हैं जनाब lymphocytes of the thymus. तो हो क्या रही है बात, हमेशा कॉन्टेक्स्ट लूज नहीं करना है आपको, ब्रॉडर जो पिक्चर है वो पता होनी चाहिए. हम बात कर रहे हैं थाइमस की. थाइमस में दो तरह के सेल्स हैं, एक एपिथेलियल सेल्स जो नॉन फैगोसाइटिक हैं, या अगर मैं दूसरे अल्फाज में कहूं, दीज आर काइंड ऑफ द सपोर्टिंग सेल्स. इनका काम है सपोर्ट करना थाइमस के डिफरेंट फंक्शंस को. दूसरी सेल टाइप जो थाइमस के अंदर है, उस दूसरी सेल टाइप का नाम है लिम्फोसाइट. अब जाहिर है ये लिम्फॉइड टिश्यू है तो लिम्फोसाइट्स तो होंगे, और थाइमोसाइट्स कहते हैं इन लिम्फोसाइट्स को क्योंकि ये थाइमस पे मौजूद हैं. इन द कॉर्टेक्स ऑफ ईच लॉब्यूल ऑफ द थाइमस द रेटिकुलम फॉर्म बाय द एपिथेलियल सेल इज डेंसली पैक्ड विद लिम्फोसाइट. तो यहाँ पे जो आप ऐसे समझ लो कि जो शेल्फ बने थे, शेल्फ्स आर मेड ऑफ द रेटिकुलम ऑफ द एपिथेलियोसाइट्स. इन शेल्फ पर आके बहुत सारे लिम्फोसाइट्स अरेंज हो जाते हैं. सो लिम्फोसाइट्स आर देयर, ऑब्वियसली दे परफॉर्म देयर फंक्शंस सच एज फैगोसाइटोसिस एंड व्हाटएवर इज द जॉब ऑफ दोज लिम्फोसाइट्स. ओके, दे आर प्रेजेंट इन द थाइमिक कॉर्टेक्स. ये है सारा रीजन, और एक्चुअली कॉर्टेक्स में ही होते हैं लिम्फोसाइट्स. हमने अभी लिम्फ नोड पढ़ा था थोड़ी देर पहले, वहां पर भी यही स्ट्रक्चर था. लेट मी गो टू द डायग्राम. दिस वाज द लिम्फैटिक नोड्यूल, और कॉर्टेक्स का जो रीजन था, उस कॉर्टेक्स के रीजन में देयर वर लिम्फोसाइट्स. ओके, राइट. अब बात को आगे बढ़ाते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट समथिंग मोर अबाउट थाइमस. थाइमस में और भी कुछ सेल्स हैं सच एज मैक्रोफेजेस. अपार्ट फ्रॉम एपिथेलियल सेल, ये पहली कैटेगरी थी सेल्स की, lymphocytes थी, दिस वाज द सेकंड कैटेगरी. थाइमस आल्सो कंटेन सम मैक्रोफेजेस. दे आर प्लेस्ड सब adjacent to the capsule usually at the corticomedullary junction, और इनका काम भी होगा obviously phagocytosis. और deeper lying macrophages are dendritic cell. ये हमने पहले भी बात की थी कि वो macrophages जो एंटीजन प्रेजेंट करने की कैपेसिटी रखते हैं उनको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं या डेंड्राइटिक सेल्स, और अभी देखते हैं वो क्या काम करते हैं. A very important concept is that of the corpuscles of Hassel. These are small rounded structures present in the medulla. So lymphocytes are present in the cortex, but these structures are present in the medulla, okay, of the thymus. Each corpuscle has a central core formed by the epithelial cells that have undergone degeneration. गौर से समझें इस बात को. These cells ultimately form a pink staining hyaline mass. Around this mass there is a wall formed by concentrically arranged epithelial cells. These cells also stain bright pink with hematoxylin and eosin. The central mass of the corpuscle may also contain degenerating macrophages. The functional significance of the Hassel capsule is not understood. Basically ये degenerating epithelial cells हैं जो कि cortex में नहीं बल्कि medulla में हैं. So the degenerating cells, they are visible as pink hyaline masses like this. You see, these are the Hassel's corpuscles. These are all lymphocytes, but these are the Hassel corpuscles, and they are present in the medulla. So this is the region, this is the region, this is the region. In the medulla you will see these pink structures which are degenerating epithelial cells, corpuscles of Hassel. Okay, exactly इनका रोल पता नहीं है क्या है, क्यों करते हैं, but anyways they are present there. होते हैं तो हम पढ़ते हैं. Now फंक्शन क्या है जनाब थाइमस के? थाइमस का फंक्शन तो मैं बता के थक गया यार. The function of thymus is basically to train the T lymphocyte. The role of the thymus is lymphopoiesis that has been discussed earlier. Stem cells from the bone marrow that reach the superficial part of the cortex divide rapidly to produce, but that is limited capacity. एक age के बाद thymus does not produce lymphocyte, but they only train lymphocytes. Okay, so इसको हम बेसिकली कहते हैं T cell exposure to appropriate antigen. So from above it will be understood that why thymus is regarded as a primary lymphoid organ along with the bone marrow. There are two primary lymphoid organs, bone marrow and thymus, because thymus में भी hematopoiesis का process होता है, lymphopoiesis का process होता है, lymph cells बनते हैं. It has been held that within the thymus lymphocytes are not allowed to come into contact with the foreign antigens because the presence of the blood thymic barrier. यार ये बड़ा
इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर लिम्फोइड टिश्यू में जब ब्लड गुजरता है तो वो लिम्फोसाइट के साथ टच में आता है। थाइमस में ऐसा नहीं है, बिकॉज थाइमस में जो एपिथेलियोइड सेल्स हैं दे मेक अ ब्लड थाइमस बैरियर, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली थाइमस का काम फिल्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया या सफाई या फिल्ट्रेशन करना नहीं है। थाइमस का काम है ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग होती है बंद दरवाजे के अंदर। बाहर से कोई चीज आएगी तो ट्रेनिंग डिस्टर्ब होगी। ओके, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। प्रोलिफरेशन ऑफ टी lymphocytes and their conversion into cells capable of reacting to antigen is also the job of thymus. So maturation of T cells basically. A number of hormones produced by thymus have now been identified. For example, thymulin enhances the function of various types of T cells. Thymopoietin stimulates the production of cytotoxic T cell, yani CD8 positive T cells. Thymosin alpha 1 stimulate lymphocyte production and also production of antibodies. Thymosin beta 4 mononuclear phagocytes की activation. Thymic humoral factor suppressor T cell or helper T cell की multiplication. So thymus is pretty important organ guys. अगर आपने thymus की anatomy सही से नहीं पढ़ी तो मेरी playlist देखिए और फिर यहाँ histology पढ़िए. Apart from their actions on lymphocytes, hormones produced in the thymus probably influence adenohypophysis and the ovaries. जनाब पिट्यूटरी के साथ भी छेड़छाड़ कर रहा है, ovaries के साथ भी कर रहा है. In turn, the activity of thymus is influenced by hormones produced by the adenohypophysis, by the adrenal cortex, and by the gender hormones, sex hormones. So it's pretty important organ guys. मेरी इनफैक्ट अंडरस्टैंडिंग ये है कि फ्यूचर में जैसे जैसे रिसर्च बढ़ेगी थाइमस का रोल मजीद क्लियर होगा. अभी मुझे ऐसे लगता है कि हम थाइमस के बारे में सब कुछ जानते नहीं है, छुपा हुआ रुस्तम है ये. नाउ enlargement of the thymus is often associated with a disease called myasthenia gravis. In this condition there is great weakness of skeletal muscle. In much cases the thymus is enlarged and there may be a tumor in it. So the tumor of thymus, overactivity of thymus, abnormal activity of thymus is associated with myasthenia gravis. Removal of thymus may result in considerable improvement in some cases. Okay? और अगर thymus ठीक से काम नहीं करेगा तो एक मेजर जो मसला होना है वो ये कि टी सेल की ट्रेनिंग नहीं होगी, और टी सेल की ट्रेनिंग नहीं होगी तो इमेच्योर टी सेल सर्कुलेशन में आ जाएंगे, सेल्फ एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, और एक मसला ये होगा कि ऑटो इम्यून डिजीज खड़ी हो जाएगी. ओके, ये हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं ऑलरेडी जब हम बात कर रहे थे फिजियोलॉजी में इम्यूनिटी की. इस वजह से मैं यहाँ थोड़ा तेजी से इसको स्किम कर रहा हूँ. ओके, Now, आखिरी दो lymphoid टिश्यू जो मुझे डिस्कस करने हैं वो है म्यूकोजा एसोसिएटेड lymphoid tissues. As discussed, significant aggregations of lymphocytes are seen in relation to the mucosa of the respiratory system, of the GI tract, urogenital tract, and they are all combined known as the mucosa. So, क्योंकि mucosa के अंदर होते हैं. The total volume of the mucosa associated lymphoid tissue is more or less equal to that of the lymphoid tissue present in the lymph node and spleen. Wow! यानी ये जो MELT है, mucosa associated lymphoid tissue, ये वैसे दिखने में तो लगता है थोड़ा इधर थोड़ा उधर थोड़ा उधर, लेकिन सारे को मिला लो तो बाकी सारे लिम्फोइड टिश्यू के बराबर है ही है, यानी इट्स ह्यूज. म्यूकोजा एसोसिएटेड एग्रीगेशन ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज हैव सम फीचर्स इन कॉमन, और वो फीचर्स क्या हैं? These aggregations are in the form of one or more lymphatic follicles, lymphatic nodules, having a structure similar to the lymph node. जैसे lymph node में होता है ना, lymph node में germinal center है, cortex है, medulla, बिल्कुल ऐसे ही arrangement यहाँ भी है, and it is also equipped with B lymphocytes and T lymphocytes. These masses of lymphoid tissue are present in very close relationship to the epithelial lining of the mucosa, and इसका purpose ये, अब जैसे GI tract है, GI tract ही ये ट्यूब है और उसमें यहाँ पे म्यूकोजा में ये लिम्फोइड टिश्यू है, तो जो भी यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह एनकाउंटर होगा, द लिम्फोसाइट्स इन दिस MELT विल रिएक्ट एंड दे विल ट्राई टू फैगोसाइटोज इट. तो इसका काम है प्रोटेक्शन, और ये हर उस जगह की म्यूकोजा पे मिलेगा जहां पे हैवी बैक्टीरियल एक्सपोजर की पॉसिबिलिटी है. फॉर एग्जांपल जीआई ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो वहां म्यूकोजा पे ये मिलेगा. ओके, द एग्रीगेशंस आर नॉट सराउंडेड बाय अ कैप्सूल, देयरफॉर इट इज नॉट अ डिस्क्रीट मास, तो ये लिम्फ नोड की तरह नहीं है. एज अ रूल दीज मैसेज ऑफ लिम्फोइड टिश्यू डू नॉट रिसीव afferent lymph vessels and they do not have lymph sinuses. They do not therefore serve as filter for the lymph. However, they are centers of lymphocyte production, and lymphocytes can react to the
इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके, बट ये वेल स्ट्रक्चर्ड लिम्फ नोड की तरह नहीं है. नाउ म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नोन एज बेल्ट, ये हमने पहले भी पढ़ ली थी बात, और रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरह जो गट है उसमें पर्टिकुलरली उसको नाम देते हैं गाल्ट, यानी गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. और इनके वो एग्रीगेट्स इस लिम्फोइड टिश्यू के जो इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, दे आर पर्टिकुलरली नोन एज पायर्स पैचेस एंड लिम्फोइड नोड्यूल्स इन द अपेंडिक्स. ओके, राइट, व्हाट अ ब्यूटीफुल सिस्टम. जगह जगह बॉडी ने जो लिम्फोसाइट्स हैं उनको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में हाउस करके टैबलेट्स बना के, गोलियां बना के, बॉम्ब्स बना के रख दिया है, कहीं लिम्फ नोड की शक्ल में, कहीं थाइमस की शक्ल में, कहीं म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू की शक्ल में, कहीं किसी तरह. पर्पस एक ही है, पर्पस ये है कि फिल्ट्रेशन होती रहे, बैक्टीरिया वगैरह आए तो उनको चेक किया जा सके लिम्फोसाइट्स के जरिए टू रिएक्ट टू द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म. इम्यून सिस्टम का पार्ट है गाइज lymphoid tissue. Okay, now let's talk about tonsil. Tonsils जो हैं near the junction of another, ये lymphoid tissue की category है ना tonsil. Near the junction of the oral cavity with the pharynx, there are number of collection of lymphoid tissue and they are collectively known as tonsils. The largest one of these is known as palatine tonsil, present on either side of the oropharyngeal. मुंह खोलें आ करके देखें तो आपको बैक साइड पे जहाँ पे oral cavity और pharynx मिल रहे हैं वहाँ पे गोल मटोल से tonsils नजर आएंगे. So those tonsils are at the very right place, क्योंकि इन टॉन्सिल्स में भी लिम्फोइड सेल्स होंगे ना, लिम्फोसाइट्स होंगे, और जो फूड पार्टिकल आप खाना खाते हैं वो यहाँ टच करेगा, यहाँ टच करेगा. इट इज एट द एंट्री पॉइंट ऑफ द फूड पार्टिकल. तो फूड पार्टिकल में तो क्या क्या गंद हम नहीं खा रहे होते यार, क्या क्या बैक्टीरिया, क्या क्या वायरसेस. सो अच्छा नहीं है कि यहाँ पे एक चेक पॉइंट मौजूद है. राइट एट द एंट्री देयर आर दीज इंस्पेक्टर्स, द टॉन्सिल्स. अनदर मिडलाइन कलेक्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट विच इज कॉल्ड द फेरिंजियल टॉन्सिल. स्मॉलर कलेक्शंस आर ऑल्सो देयर जो कि टंग के साथ होते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल. एंड देन देयर आर ऑल्सो अराउंड द फेरिंजियल ओपनिंग्स कॉल्ड द ट्यूबल टॉन्सिल्स. टॉन्सिल्स हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं एनाटमी में. तो अगर आप मेरी हेड एंड नेक की प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको डिटेल में टॉन्सिल्स की एनाटमी अच्छे से समझ में आ जाएगी. यहां पर बस इतना बताया कि द टॉन्सिल्स आर आल्सो एग्रीगेट्स ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, इसमें भी लिम्फोसाइट्स हैं. पैलेटाइन टॉन्सिल के बारे में थोड़ी सी ज्यादा बात की है. ईच पैलेटाइन टॉन्सिल कंसिस्ट ऑफ डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यू इन विच lymphatic nodules are present. The lymphatic tissue is covered with stratified squamous epithelium, continuous with that of the mouth and the pharynx. This epithelium extends into the substance of the tonsil as tonsillar crypts. The lumen of the crypt usually contains some lymphocytes that have traveled through the epithelium. Desquamated epithelial cells and bacteria are also frequently present in the crypts. So अगर हम बात करें मतलब आ करके देखें तो ये टॉन्सिल दिख रहा है साइड में, दिस इज ऑल द टॉन्सिल. और इस टॉन्सिल का हाफ कैप्सूल है, इस तरफ कैप्सूल नहीं है ओरल कैविटी की तरफ, बट देयर ऑन द लेटरल साइड देयर इज अ कैप्सूल. और यहाँ पे जो एपिथेलिया है वो एपिथेलिया स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है, जस्ट लाइक द अदर पार्ट्स ऑफ द ओरल कैविटी. लेकिन इसमें इन्वेजिनेशंस हैं. ये जो इन्वेजिनेशंस हैं दीज आर कॉल्ड क्रिप्ट्स, और इन क्रिप्ट्स में अरेंज होते हैं लिम्फोसाइट्स, और ये लिम्फोसाइट फिर रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू चेक फॉर डिफरेंट एंटीजेंस. ओके, सो दैट्स द ब्रीफ डिस्कशन ऑन पैलेटाइन टॉन्सिल. सो अगर आप नोट करें, और टॉन्सिलाइटिस इज ऑब्वियसली द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल. बाजों का ये इतना सीवियर होता है कि यूं गोले की तरह बड़े हो जाते हैं ये टॉन्सिल्स, और टॉन्सिलेक्टमी यानी टॉन्सिल्स को निकलवाना पड़ जाता है. अगर इस पूरे चैप्टर को आप ओवरव्यू करें तो व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट इज कि आपकी बॉडी में जो लिम्फैटिक टिश्यू है वो बेसिकली है क्या, कैसे जनरेट होता है, लिम्फ वेसल्स क्या होती हैं, उनमें ये कैसे ट्रेवल करता है, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, और इसके अलावा और लिम्फॉइड स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं. हमने बात की थाइमस की, हमने बात की लिम्फ नोड्स की, हमने बात की टॉन्सिल्स की, हमने बात की म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू की. स्प्लीन मैं ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना चुका हूं इसी बुक से, तो वो इसके साथ कनेक्ट कर लें तो स्प्लीन की भी हमने बात की. सो your body has arranged lymphocytes at different places throughout the body. इससे अंदाजा करें lymphocyte कितने इंपॉर्टेंट है. सो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू डिड प्लीज शेयर द वीडियो विद योर कॉलीग्स, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करो. आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा.